आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्टर को रिप्लेस करेंगे, नहीं, नहीं, नहीं। तो ये सुपर ह्यूमन तो पहले जाएंगे यार। वो काम तो कोई भी कर सकता है। आप हवा में उड़ के आएंगे तो वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2 मिनट में कर देंगे। Whenever I say AI, the expression I see in most people's eyes is wow, because this technology is life-changing. And when it comes to cinematic experiences, the change AI will bring to cinema or is bringing to cinema is absolutely life-changing and beyond praises. So we have someone with us who has spent kind of a lifetime with Bollywood, world cinema, theatres. He has been a spokesperson for the film industry, who has been there, done that, seen the changes, experienced the flavor of Bollywood and larger-than-life cinema, changing from the concept of humanitarian approach with plots like Do Bigha Zameen or maybe Mother India to concept technology-driven films like Avatar, Bahubali, Life of Pi. And he's the befitting person to talk about how AI is going to change the game of films. That's the reason our theme for this session is the AI revolution in Indian filmmaking, from script to screen, and you will hear amazing stories and experiences from none other than brilliant actor Dilip Tahil Ramani ji in conversation with actor, host, artist, cinema lover who believes in bringing the change by breaking stereotype and monotony, Bodhaditya Mohanty. Tahil ji, namaskar. आपका बहुत-बहुत स्वागत है. I think all of us are looking forward to hear from you, and Bodhaditya, the stage is all yours. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Dilip Tahil Ramani ji in conversation with Bodhaditya Mohanty. Good afternoon. Namaskar. This is Bodhaditya Mohanty here. A huge welcome to Dilip Tahil sir once again. Sir, yeah, please. Check. Before this very interesting conversation begins, we have a very special AV on Dilip ji. Can we please play it? भारतीय चलचित्र जगतर जड़े चर्चित अभिनेता दलीप ताहिल मुख्यतः हिंदी सिनेमा रे खलनायक भूमिकार देखा जाती। दलीप ताहिल 30 अक्टोबर 1952 मसीह उत्तर प्रदेश आग्रा रे जन्मग्रहण करिसेंती। दलीप सेरुड कॉलेज रु तांकर प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करथिले। यहाँ परे से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एवं सेंट जेवियर्स कॉलेज रु स्नातक हासिल करथिले। दलीप पिलाटी दिनरू अभिनय प्रति आकृष्ट होई पड़ती। से तांकर स्कूल जीवनरू नाटक रे अंशग्रहण करबा आरंभ करथिले। पाठ पढ़ा परे से अनेक नाटक रे अभिनय मध्य करथिले। तांको हिंदी सिनेमा रे प्रथम सुजोग निर्देशक सैम बेनेगल फिल्म अंकुर रे मिलिथिला। ए फिल्म रे से चमत्कार अभिनय करी सिने प्रेमी को आश्चर्य कर देथिले। यहाँ परे से प्रसिद्ध चलचित्र निर्देशक रमेश सिप्पींकर फिल्म शान ने अभिनय करथिले। से मुख्यतः हिंदी सिनेमा रे खलनायक भूमिका रे अभिनय करथांती। से तांकर क्यारियर रे पर्यंत 100 रु अधिक हिट फिल्म रे काम कर सारिछंती। तांकर प्रसिद्ध सिनेमा गुड़िक होउछि कयामत से कयामत तक, बाजीगर, त्रिदेव, किशन कन्हैया, कहो ना प्यार है, डर, इश्क, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, हम है राही प्यार के, राम लखन एवं थानेदार इत्यादि। छोट परदारे मध्य तांको अभिनयर जादू देखिबाकु मिले। संजय खानकर द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एवं रमेश सिप्पींकर बुनियाद रे तांकर अभिनय दर्शकंकर हृदय चिनी पारिथिला। से ब्रिटिश टीवी धारावाहिक बॉम्बे ब्लू रे मध्य अभिनय करथिले। जदिओ दलीपकर हॉलीवुड रे कैरियर गांधी चलचित्र रु आरंभ होइतिला, किंतु से द डिसीवर्स एवं ए परफेक्ट मर्डर चलचित्र सहित अंतर्जातीय स्वीकृति पाइथिले। a huge round of applause for Dilip Tahil sahab. सर टॉपिक है एआई रिवोल्यूशन इन फिल्म्स, और उससे पहले सर आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। I would want to chat with you.
सर आप तो खुद ही ये लग रहे हैं, यू लुकिंग सो फिट एंड गुड. यू आप नेचुरली नहीं लग रहे, ऐसा लग रहा है डाउनग्रेड किया गया है. यू लुकिंग ग्रेट सर. Sir, if I'm not mistaken, the first theatre experience was way back when you were in school in Sherwood in Nainital. You played Joseph. 3 साल आपको Best Actor Award से नवाजा गया. Were the seeds of acting harvested when you were in school for your aspirations for your future sojourn in the silver screen? Well, at the outset, a very good afternoon to everyone. And thank you to Odisha Television Network for having me here and giving me this wonderful invitation and this opportunity to be able to be at this program, Foresight. My compliments to your channel for organizing this. And what I heard earlier on was very inspiring. So thank you all for coming here. It's actually, अगर मैं अंग्रेजी में बोलूँगा तो आपको समझ में आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा ना, ठीक है. या तो मेरी शुरुआत हुई थी स्कूल में. तो क्या था कि थिएटर में हमें जाना पड़ता था, मतलब मजबूरी थी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट माउंटेनियरिंग में था. लेकिन जब हमारे स्कूल की एक्सपीडिशन गई थी माउंटेनियरिंग के लिए, मैं बीमार पड़ गया. तो मुझे वापस स्कूल आना पड़ा. और वहाँ पर सिर्फ थिएटर का प्ले, उसकी कास्टिंग नहीं हुई थी. तो मैं बहुत दुखी था कि भैया ये तो मैं तो हीरो बनने गया था, पहाड़ों से आऊँगा, बाल लंबे होंगे, सन टैन होगा, और जब स्कूल का फाउंडर्स डे होता है तो मैं एक एंट्री करूँगा. ये नहीं हुआ. तो वहाँ से मुझे उन्होंने कहा कि अभी ये थिएटर में जो प्ले है इसमें अभी कास्टिंग नहीं हुई, उसमें जाओ और तुम्हें थोड़ा सा काम मिल जाएगा. तो मैं टीचर के पास गया. मैंने कहा कुछ भी दे दीजिए मुझे, अगर पेड़ का रोल हो या कुछ भी हो आप मुझे दे दीजिए, मैं खड़ा हो जाऊंगा स्टेज पे, मुझे कुछ करने के लिए मुझे काम मिलेगा. तो उन्होंने मुझे एक रोल पढ़ने के लिए कहा. वो मेन रोल हो गया. तो वहां से मुझे अच्छा लगा स्टेज पे आके कि यार ये अच्छा, लोग तालियां बजा रहे हैं. और उस साल मुझे बेस्ट एक्टर भी मिल गया. कैसे मिला मुझे कुछ समझ भी नहीं आया. लेकिन वो जो पहला एहसास था, वो फीलिंग था कि ये क्या चीज है, कोई नई चीज आ गई है मेरी जिंदगी में, जो लगता है कि मैं कर सकता हूं. तो वहां से शुरुआत हुई, वहां से जड़ मतलब पैदा हुआ, जो सीड जिसे बोलते हैं. और वहां से मुझे ईश्वर की कृपा से, और मैं भाग्यशाली समझता हूं अपने आप को कि इतना काम मुझे मिला है. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड मैं मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ये क्या है. अभी जब आप प्रश्न पूछते हैं तो मुझे सोचने पे मजबूर कर देते. तो मैं सोचता हूँ कि भाई ये सब हुआ कैसे. उसके बाद बॉम्बे में थिएटर गुरु, एड गुरु एलेक पदामसी के साथ आपने भी काम किया. स्ट्रीट का नेम डिजायर, मैकबेथ. जी हाँ. फिर स्कूल खत्म करके हमारे स्कूल में बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था शरवुड नैनीताल में, जो उस समय उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, अभी उत्तराखंड में है. बहरहाल तो हमें 9 महीने के स्कूल के बाद 3 महीने की छुट्टी मिलती थी. तब तक मेरे पिताजी बॉम्बे में शिफ्ट हो गए थे. उस टाइम में बॉम्बे कहते थे, अभी मुंबई बोलते हैं. जगह एक ही है, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो जाएं. तो जब वो आए वहां पर, तो 9 महीने की छुट्टी के बाद जब हम घर आते थे तो बोर्डिंग स्कूल का तो एक ही होता था कि खाना चाहिए. तो मैंने अपने माँ को 10 दिन के लिए स्कूल से आने के बाद इतना तंग किया और इतना खाना खाया, तो उसने मुझे पकड़ के कहा कि भैया कुछ खाना बचा नहीं है, घर पे जाके कुछ काम करो, कुछ मतलब गो आउट ऑफ द हाउस यार, कुछ करो, मेरी नजर से प्लीज लीव द हाउस. तो मैंने पूछा, वहां पर मैं प्ले करके आया था मतलब नैनीताल से. तब तो मैंने पूछा यार यहाँ पर थिएटर वेटर का कुछ है क्या, चक्कर क्या, कौन करता है यहाँ पर. तो एक ही आवाज गूंजी, मतलब कि एलेक पदमसी जो एडवर्टाइजिंग के गुरु थे और उनका बहुत ही बढ़िया थिएटर कंपनी था. तो उनको फोन किया मैंने. उस जमाने में कोई मोबाइल नहीं था, तो वो काला डब्बा होता था फोन का, वो घुमाया मैंने. और सेक्रेटरीज का भी टाइम नहीं था, तो उन्होंने खुद फोन उठाया और मुझे बुलाया, और वहां से मेरी जर्नी शुरू हो गई थिएटर में. सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सिल्वर स्क्रीन पे पहली बार शायद 1974 में श्याम बाबू की फिल्म अंकुर से आपके अंकुर
और जी सर हाँ, एक ट्रिविया बताऊंगा। अंकुर में जो बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था जिन सज्जन को, वो हमारे उड़ीसा के थे, श्री साधु मेहर साहब, एंड ही इज नो मोर विद अस। 2 साल पहले उनका इंतकाल हो गया था। साधु मेहर साहब जो लीड में थे अंकुर में। Oh, I'm एनी so फॉन्ड sorry. मेमोरीज सर? Sadhu Meher ji ka, haan, is a wonderful, wonderful artist. And I'd like to express my condolences to the thing. अंकुर भी वही हुआ, मैं थिएटर प्ले कर रहा था और आप कहेंगे कि ये सब मतलब ऑटोमेटिकली, लेकिन श्याम बाबू उस टाइम पे एडवर्टाइजिंग में काम किया करते थे। उनका ही वाज अ इंडिपेंडेंट एडवर्टाइजिंग फिल्म मेकर, और वो ये प्ले देखने आए जो जीसस के ऊपर था, गॉड्स पे। अंग्रेजी म्यूजिकल था, पहला अंग्रेजी म्यूजिकल जो इंडिया में हुआ था। तो वहां पर सबके बाल लंबे थे और हम सब मतलब वो 70s का कल्चर भी वैसा था कि सब लंबे बाल रखते थे और सब हम अपने आप को बहुत कूल समझते थे और हिप्पी की तरह हम घूमते फिरते थे, आवारा गर्दी। तो श्याम बाबू आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम मुझे अच्छा लगा, अगर तुम हेयर कट करवाओगे तो मैं हैदराबाद में पिक्चर बना रहा हूं, तुम्हारे लिए एक रोल है मेरे पास। तो मैंने सोचा यार ये फिल्म, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन। लेकिन उसके मतलब 3-4 दिन बाद मेरे घर पर एक साहब आए श्याम बाबू के दफ्तर से। उनके हाथ में एक लिफाफा था, उस लिफाफे में हैदराबाद, बॉम्बे टू हैदराबाद की टिकट थी, ट्रेन टिकट, 2nd क्लास स्लीपर। और उस लिफाफे में 200 रुपए थे खर्चे के लिए ऑन द जर्नी। तब मुझे लगा कि यार ये बहुत ही अच्छी बात है यार, एक तो मुझे हैदराबाद में टिकट भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। तो वहां पर लोकेशन पे जब हम शूट कर रहे थे तो श्याम बाबू का उनका सिस्टम था कि आप चाहे आपका काम हो ना हो, लेकिन आपको सेट पे ड्यूरेशन शूटिंग के, अगर 35 दिन की शूटिंग हो तो आपको वहां रहना पड़ेगा, चाहे आपका 2 दिन का काम हो या 5 दिन का काम हो। तो मेरा इस 35 दिन के शेड्यूल में 6-7 दिन का काम था, लेकिन इसका मतलब था कि मेरे पास 25 दिन फ्री थे। और हर हफ्ते एक लिफाफा आता था मेरे पास जिसमें पैसे आते थे, टू एज डीए, मतलब खर्चे के लिए पैसे दिया करते थे। तो मैंने कहा यार दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो काम भी नहीं कर रहा हूं तब भी मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो ये तो मुझे परस्यू करना चाहिए। तो वहां से मतलब आई एम जस्ट जोकिंग, लेकिन वहां से उस फिल्म से काफी एडिट हो गया था और अपॉर्चुनिटी वाज फैंटास्टिक। उसमें शबाना आजमी जी थी, उनका डेब्यू था। साधु मेहर थे जो कमाल के आर्टिस्ट है, अनंत नाग, श्याम बेनेगल साहब के डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी उस जमाने में गोविंद निहलानी थे। तो जब इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं क्योंकि मेरी शुरुआत इतने अच्छे लोगों के साथ हुई, और ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही फॉर्चुनेट अपने आप को समझता हूं कि इन लोगों के साथ मेरी जब शुरुआत हुई तो इनसे सीखने का जो प्लेटफॉर्म जो उन्होंने मुझे अपनी शुरुआत में दिया, ये आज तक मेरे साथ है। और मैं कभी कभी देखता हूं और मुझे आश्चर्य होता है और दुख होता है कि इतने एक्टर हैं जो उनको ये स्टार्ट नहीं मिलता है अच्छे लोगों से के साथ। तो आई फील दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय लाइफ, और वहां से जाके मुझे और अच्छे लोगों के साथ काम मिला। रमेश सिप्पी साहब के साथ शुरुआत में बी.आर. चोपड़ा थे, बी.आर. चोपड़ा साहब, उनके साथ काम मिला। नासिर हुसैन अपना मंसूर का क़यामत से क़यामत तक। तो I was very fortunate that I worked with such good people in the beginning of my career. Although अभी 2025 में हम AI की डिस्कशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी फिल्म शुरुआत में उसे VFX कह सकते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स कह सकते हैं, एंड आई पर्सनली थिंक इट वाज इवन बेटर देन बॉन्ड फिल्म्स, और वो थी रमेश सिप्पी साहब की शान, द रिवॉल्विंग सेट, और वो जो पीछे आई थिंक दे वेंट टू द बॉन्ड सेट, वो जो पीछे मछली और वो सब होते थे। बिगिनिंग ऑफ ब्लू साइक, उसको ब्लू साइक बोलते थे। उसमें क्या था कि वो मगरमच्छ पीछे दिखाते हैं, और क्योंकि मेरे पास डेट प्रॉब्लम नहीं था तो मुझे मगरमच्छ को नहीं खिलाया गया। जो एक हमारे साथ थे जो उनको घुमा रहे थे, तो उन्होंने रमेश जी साहब, सॉरी आई एम डाइग्रेसिंग बट इट्स एक लाइट इंसिडेंट है। सुधीर बगू जी जो बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, अभी हमारे साथ नहीं है आज,
लेकिन वो चारों को हम सब शाकाल के 4 खास लोग थे, तो उनने एक दिन रमेश जी से कहा, रमेश जी मुझे एक फिल्म मिली है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें जाना है, तुम्हें डेट नहीं है, चलो कल इसको मगरमच्छ को खिला दो, इसको चलो आउट करो। तो मेरे पास डेट प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं काफ़ी टाइम तक रहा। बट वहाँ पर वो मगरमच्छ का जो था वो ब्लू साइक टेक्नोलॉजी में पहली बार हमारी फिल्मों में इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया कि वो बाद में डाल देते हैं। ब्लू साइक के पास उसके ऊपर है पीछे, तो उसका फ्रेमिंग वेमिंग और फिर वो कंप्यूटर ग्राफिक्स या उससे करके वो फिर वो मछलियां डाल देते पीछे, और वो पूरा जो था तो सेट पे नहीं था। वो ब्लू साइक का पहली बार मेरे एक्सपीरियंस में पहली बार आया था। तो टेक्नोलॉजिकली शान वाज अ ब्रेक थ्रू फिल्म। उसमें और भी ऐसी चीजें थी जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था एक स्पेशल लेवल पे। और आई थिंक द कॉन्वर्सेशन टुडे इज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसका सॉरी आई एम टेकिंग द क्वेश्चन अवे फ्रॉम यू। नो, मैं वही तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं शान से मुझे देखने को मिली। It was not artificial intelligence, it was pure intelligence. There was nothing artificial about it. Artificial intelligence is actually, for me, I'll start off on a light thing, it's a bit of a contradiction. एक अंग्रेजी में कहावत है, लेकिन मैं इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा कि इंसान जो मतलब हम इतने होशियार हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इतने मूर्ख भी हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है हमें, और इतने बुद्धू हैं कि हमें मालूम नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां इस्तेमाल किया जाए। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। और लोग मजाक भी करते हैं कि सर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम इस दुनिया के मूर्खों से मुक्ति मिल जाए हमें, तो बहुत ही मतलब मैं सोचूंगा कि बहुत बड़ा काम किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। अभी रही बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फिल्मों में, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ इट। इट इज द, और जिसको हम बोल रहे हैं जहां इसमें it is like all technologies that come, in my opinion, it is also a disruptive technology. Because this technology, though it is absolutely fantastic, but लेकिन ये बड़ी कंपनीज के हाथ में आएगा जहां सबसे ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, फिल्मों की बात तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन इसे आप अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डाल दें जहां आपको करोड़ों की टैबलेट्स बनानी पड़ती हैं, और जो फॉर्मेशन जो है उसका सेट फॉर्मेशन है जहां आपको फिर लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आराम से आप मशीन्स थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट रोबोटिक इंटेलिजेंस टू डू दैट। इसमें डेंजर क्या है? आई एम ऑल फॉर टेक्नोलॉजी, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं सोचता हूं कि टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में बहुत आवश्यक है और अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी, लेकिन डेंजर इसका क्या है? जो सेल्फ रेगुलेट करना पड़ेगा, जिसका सबूत आज तक मुझे मिला नहीं है बिग कंपनीज में। 2008 में जो फाइनेंशियल डिजास्टर हुआ था, दैट हैड एवरीथिंग टू डू विद लैक ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। चौपट कर दिया पूरी दुनिया को, जिनको पैसे कमाने थे। ये डेंजर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसके फायदे भी हैं, वो उस पर मैं आऊंगा, लेकिन ये डेंजर क्या है कि आप समाज में लोगों को बेकाम कर देंगे, बेरोजगार कर देंगे। उनका क्या होगा? आप उनको कैसे रिहैबिलिटेट करेंगे? वो मतलब करेंगे क्या? लाखों में लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट्स अ टूल। मतलब आपके हाथ में स्क्रू ड्राइवर दूं तो आप टाइट भी कर सकते हो और ढीला भी कर सकते हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजिकल टूल, जो अभी तक वो टेक्नोलॉजी आई नहीं है जहां वो ह्यूमन इमोशंस इतने रैपिड होते हैं और इतने फ्लूइड होते हैं कि उसको रिप्लेस करने में वो टेक्नोलॉजी अभी यहां तक पहुंची नहीं है। तो फिलहाल मेरा काम पक्का है, मतलब मुझे निकालेंगे नहीं फिल्म इंडस्ट्री से, लेकिन टेक्नोलॉजिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज अ रोल टू प्ले इन सोसाइटी मेनली, क्योंकि देयर इज अ टेक्निकल साइड ऑफ फिल्म्स जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत होगी। दैट्स डिजिटल कैमरास, देन यू हैव साउंड रिकॉर्डिंग, यू हैव पोस्ट प्रोडक्शन, जैसे आपने शान का जिक्र किया, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ऑल
these aspects will immediately fall into artificial intelligence will be very beneficial in the technological area. Which is the problem? That is the thing that a lot of people will be made redundant. It is my biggest fear. And that's going to be in lakhs and millions of people will be redundant. What effect is that going to have on society? The important thing, सबसे अहम बात ये है कि the application of artificial intelligence has to be self-regulated. कि किस हद तक हम लोगों के काम निकालें, किस हद तक हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे. और आज तक मुझे बड़े फार्मा से या बड़ी कंपनीज में, माफ कीजिएगा, कोई सबूत नहीं है कि ये प्रॉफिट के लिए कहां किस हद तक जाएंगे. हमें मालूम है कि 2008 में क्या हुआ. तो दिस इज द डेंजर साइड ऑफ इट, which we have to address in every developing country, in every country of the world. We have to address this issue. To what level we allow artificial intelligence to imbalance the society that we know, and to what extent we use artificial intelligence to enhance our lives, to make our lives better, to make our lives more progressive, to have more harmony in the world. That is a very important aspect which has a big question mark on it. Artificial intelligence is, as you all know, it's a sophisticated form of technology, and it is quite amazing that the human mind has got to a level where you can create artificial intelligence. However, जो मतलब signals हैं कि मुझे अक्सर ये सवाल पूछते हैं लोग, या तुम्हारा क्या होगा, यार एक्टर्स को क्या होगा, ये तो it's a long way off. And in any case, hopefully, and in any case, the artificial intelligence to take over the human mind for emotions is probably be the final and last stage of its sophistication, which may not even be achieved, which is a question which is open for everyone. I mean, some people believe that it can be achieved. I believe that it'll never really be matched. I mean, if you're telling me that artificial intelligence, maybe I'm backward in that, is going to sit here and speak to you at the way I'm speaking to you and my thought process, well, great. I mean, absolutely wonderful. But I think it'll be more applicable in technology, in the technological side of life. Is it's up for debate. I mean, I'm not an expert on artificial intelligence at all. I'm more sort of. I like to think that it's better to develop natural intelligence, so that and get rid of natural stupidity quicker than we concentrate on artificial intelligence. I was coming to that. I mean, the tagline is from script to screen. You have worked with the greatest of writers like Salim Javed Saab, Nasir Hussain ji, Indra Kumar, Abbas Mastan, etc. So, क्या आपको लगता है कि AI will make a dent in normal screen writing में भी, कि इंटरवल यहाँ होगा, क्लाइमैक्स ऐसा होगा जैसे बाजीगर में सर मदन चोपड़ा, आज तक हमें याद है. तो मदन चोपड़ा क्या करते AI में, मतलब शाहरुख शिल्पा को फेंक देते, या आप उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मारते, खुद जाके मुझसे पंगा मत लेना, तूने मदन चोपड़ा से पंगा लिया. Artificial intelligence are all sci-fi movies. I mean, it's all a part of it. In बाजीगर में artificial intelligence नहीं थी. I don't know if it was anything. उसमें सलिया मार रहे थे एक दूसरे को. अगर artificial intelligence होता तो I would shot him with the beam, zap, shum, end of story. तो वो शायद चलता नहीं चलता. I don't know, but there's an aspect of this is the crucial aspect of artificial intelligence. Technically, you can write a script in artificial intelligence. You can feed in the matter. Now, this is important. You still have to program it. Artificial intelligence is artificial intelligence. It will not work unless you program it and give it a direction. Ki yaar, I want a script made like ding, 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 ding. This is the emotion thing. Third reel mein ye hota hai, chauthe reel mein ye hota hai, phir ye hota. And artificial intelligence can create a script for you, technically. But if you're telling me that artificial intelligence can create the emotion that you are feeding in to artificial intelligence,
then I'm a little bit of a skeptic on that. I mean, I just have a lot of value for the human mind, and I think eventually it may speed up the process. You may be able to feed in all this into and get an ideal script, but you've created the script. Right. You have to give the information to artificial intelligence. That's why it's called artificial intelligence. It doesn't have intelligence of its own. So I feel its function is more on the side of big industry, where manufacturing costs come down, where profit margins increase. And yes, there is the technical side of filmmaking, like I said, which is post-production, digital, camera work, sound recording, and all these technical aspects. And even in certain movies which अभी आप कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्टर को रिप्लेस करेंगे नहीं। तो ये सुपर ह्यूमंस तो पहले जाएंगे यार, वो काम तो कोई भी कर सकता है। आप हवा में उड़ के आएंगे तो वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2 मिनट में कर देंगे। या टर्मिनेटर बनी भी थी। अब with all due respect, I'm a huge fan of Mr. Arnold Schwarzenegger, but please, I mean, those kind of movies you can easily have replaced with artificial intelligence. Where you're going to have a problem is when you talk about human emotions. And I'm not saying that it won't be made. I'm saying there's a very good chance, as I can see on the screen, it will be made. They will coexist. There will be the thing where you make a film totally on artificial intelligence, where the emotions are fed in. But at the end of the day, I'm of the belief, this is my personal belief, it's very subjective, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबकी ये विश्वास. I believe that human beings will always be attracted to live and human emotions. Cannot take that away. That is the key and the umbilical that human beings have to each other is the emotional content. And I think as long as that is there, there will be performances, maybe live performances in the movies. So yeah, I think that they will coexist. I mean, there's no question about the fact that artificial intelligence will make an impact. Even say when it comes to special effects, when it comes to post-production, तो AI revolutionary हो सकती है और हो रही है, जैसे अवतार हुए, अभी राजामौली की फिल्में हो रही हैं, या even our own Kalki last year. There's so many. I mean, internationally, I mean, you see, हमारे यहाँ भी हो रहा है, but look at the technology leap that जब मैंने अपना career शुरू किया था शान में, और आज उस टाइम पे I had the privilege of working शान, which was a breakthrough film. It had great technology. लेकिन आज की technology मैं देखता हूँ तो अभी आप feature film अपने mobile phone पे बना सकते हो. तो there's a huge technological leap, and it's very good. It has its advantages. Today, as I was hearing them speak, अगर आप गाना गाते हो तो पुराने जमाने में आपको रिकॉर्डिंग कंपनी चाहिए थी, आपको रिलीज कंपनी चाहिए थी, ये चाहिए था, वो चाहिए था, दुनिया भर की चीजें चाहिए थी. आज आप जाके रिकॉर्ड कीजिए अपने मोबाइल फोन पे, यूट्यूब पे डाल दीजिए. So I respect technology because technology gives people the opportunity to express themselves, and I really think that is a very important thing. But I just find this whole concept of artificial intelligence a little, it's very exciting, but it's a little blown out of proportion, because at the end of the day, it's a sophisticated technology which we program. Intelligent people like us program it, and then we need artificial intelligence to survive. That is quite crazy. Sir, मतलब AI को जो आप कह रहे हैं, the pen drive will never replace the pen. Pen drive जो है, मतलब AI will never replace. It might be an advantage of screenwriting, filmography or direction. What about 20, 30 years later, जहाँ दुनिया सिकुड़ सी जा रही है? Artificial intelligence is a sophisticated tool. At the end of the day, it is a tool. You can use it in whichever way you wish that it can be applicable. It can be applicable in technology if you feel that it helps you script write, it helps you do that. So you can use the tool as you wish. But the concept in the performing arts is what I'm saying. To think that artificial intelligence will replace emotional content or an emotional connect is a little far-fetched for me. I may be wrong, but it's far-fetched for me.
That's why I feel the danger of artificial intelligence at the moment is not me. It is big pharma, big companies that will use it for robotic intelligence to make robots that will replace people's work. That, for me, is the biggest red flag of artificial intelligence right now. But then I am a bit conservative from that point of view. There are techies who will say, what rubbish, Mr. Tahil, you're talking through your hat, without a hat. So absolutely wrong, we need artificial intelligence. So be it. I mean, you know, it is a technological tool. सर रिकॉर्डिंग से एक बात याद आई मुझे और हैट से भी सर 150 रुपये पॉकेट में हुआ करता था 94-95 में 50 रुपये दे के मैंने आपका एल्बम खरीदा था मैग्नस साउंड का यू आर डोंट नो ही इज अ ग्रेट सिंगर तो आपको मैं रिफंड करूं अभी बिल्कुल सर विद इंटरेस्ट You didn't like the album. I loved it. I saw it. आप नाइट विद निकी आए थे स्टार प्लस पे एक चैट शो में आपने कहा था तो उस वक्त इवन रिकॉर्डिंग आप लोग को वन टेक में करना होता था So I'm saying, I mean, in those days you were dependent on a music company. They had to pass the budget, which is rightfully so. They had to do the marketing. It was a whole process that so many good singers didn't get the opportunity. That's why I respect technology. I'm saying that today when I see programs on Instagram and on Facebook, such fabulous singers who don't need all this infrastructure anymore. You just put it on and the immense amount of talent that has come बट forward. कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी यूज होता है सर दे यूज ऑटो ट्यून ऑल्सो वेराज आपके जमाने में वो नहीं था इट वाज रियल साज रियल गाना नहीं, आज के गाने भी रियल हैं उसमें कुछ नहीं है आई मीन द पॉइंट इज दैट they're recording it. I mean you do a digital recording or you do a tape recording, it is still you know, it's still a song. I'm just saying that if you, for example, if you had told me when I started coming into the movies, if you told me that, you know, actually there will be a mobile phone on which you can do everything, I'd have said, like I'm saying about artificial intelligence now, I would have said, you know, you need your head examined. I mean, what are you talking about? But it's true. So I mean, human beings create the technology. So, you know, I can see that there's science who's saying like, okay, pack up. Oh, that's artificial intelligence. It doesn't mean And that is with sheer hand gestures. I'm glad you didn't use any artificial intelligence to zap me from the, time is up, get lost. Thank you. Okay, we'll take some questions from the esteemed audience. Sure. And let me inform you, sir. Thank you, sir. OTV News, Jackie ma'am, they're one of the first to use artificial intelligence in news reading. सर उससे साबित लेकिन एक बात हुई कि इंटेलिजेंस मेरा आर्टिफिशियल था क्योंकि मैं उससे सच्ची समझ बैठा था और मैं उससे शादी करना चाहता था हाँ वो लीजा थी और वो बात अलग है कि वो जैकी मैम की तरह दिखती भी बिल्कुल थी तो हिम्मत नहीं हुई तो वापस आ गया तो दे वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस न्यूज़ एंकरिंग और सब डर गए कि वो रिप्लिकेट हो जाएंगे ह्यूमंस विल बी रिप्लेस्ड लेकिन वो जैकी मैम एंड ऑल OTV इज वंडरफुल इन द नंबर 1 न्यूज़ चैनल इन द नंबर 1 in the state and the country. And thank you for calling us here with have zero intelligence or artificial intelligence. देखिए अभी भी हमारी ज़रूरत पड़ती है. सर मेरी तो अभी शादी भी नहीं लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम चलाना पड़ेगा. Sir, any questions? Sir, this is Sabyasachi. He is one of the leading actors. Of course. Sir. Pleasure to meet you. Sir, thank you, sir. सर ये मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ ये एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये 24 घंटे काम करता है खुद गाने गाता है खुद वीडियोस करता है चैरिटी करता है शादी भी की उसने और उसकी बीवी भी इतनी खूबसूरत है उनके पास बैठे अर्चिता नंबर 1 वो खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगती है और इसका पेट नेम भी लीजा है Oh, okay. सर ये लीजा मेरे को पीछा ही नहीं छोड़ते I don't think you can ever duplicate this lady with artificial intelligence ever. तो इसीलिए तो आज Thank तक God for that. तो इसीलिए तो आज तक मेरी भी शादी नहीं हुई क्योंकि सर हम लोगों ने 2 फिल्में बनाते हैं ट्रायंगुलर फिल्म और इनसे शादी होती है लेकिन रियल लाइफ में दोनों की शादी हो जाती है एंड दे आर हैप्पीली मैरिड एंड दे आर द जैसे रणवीर एंड दीपिका हैं सभ्या एंड अर्चिता एंड सभ्या हैज मेड सम द फर्स्ट एंड लास्ट साइंस फिक्शन फिल्म इन उड़ीसा कॉल क्यों दिल आसरा बंधु आई वाज द गेस्ट अपीयरेंस उसने कहा एलियन कोई है सर एडिटिंग के बाद पता चला एलियन मैं ही हूं 4 सीन ही थे सर प्लीज सभ्य First of all, आउटस्टैंडिंग एक्टर लेकिन अभी बैठ जा
फर्स्ट ऑफ ऑल बिग थैंक्स टू OTV एंड जागी मैम, क्योंकि आज आपको सामने देखने का मौका मिला. बिग फैन. Let's hear it for Madan Chopra. Thank you. आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इनफैक्ट मैंने आज के दिन में जैसे AI डेवलप कर रहा है और जिस स्पीड से आगे जा रहा है, कहीं ना कहीं फियर एक है एज ए एक्टर कि आगे आने वाले समय में ये जो इवॉल्व आज के दिन में, ठीक है, द वे यू मेंशन कि कोलैबोरेशन इज राइट वे टू ग्रो, दैट इज राइट, लेकिन आगे आने वाले समय में जिस हिसाब से अभी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रिप्ट जनरेशन टू कैरेक्टर जनरेशन जिस हिसाब से आगे जा रहा है, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है एज ह्यूमन कि हम लोग पीछे जा रहे हैं कहीं ना कहीं. तो व्हाट टिप्स यू वांट टू गिव टू द टेक्नीशियंस लाइक ए राइटर और कैमरामैन और एक्टर कि आगे आने वाले जो चैलेंजेस आने वाले हैं, हो सकता है आए, तो उसको कोप अप करने के लिए व्हाट इवॉल्व एक्टर क्या होना चाहिए एक एक्टर के अंदर, वो नए क्वालिटीज कि वो AI को भी बीट कर सके. छोड़ के भाग जाओ भाई, आ रहा है AI आपको पकड़ने आ रहा है, कोई और काम देख लो, अगर मिल जाए तो वो करना. I'm just joking. You can't. I mean, you know, there is, if you tell me कि यार AI आ रहा है, it's like मदन चोपड़ा कोई विलन आ रहा है वहां से, तुम क्या करोगे? As a human being, as an actor, I will continue to do what I'm doing, as I said, because I believe that the connect of human emotions, we're sitting here today. You can have a robot made of Dalip Tahil who can be sitting there and you'll probably get a sort of a different tone and answers like this, and but you may not get the emotional content. So, I mean, like I said, I'm old school in that way. I mean, I think as actors, we should continue to do what we're doing and emote. And in fact, I think that it'll be good because maybe through this, there'll be the rise of comeback to theater, which is much par jab aap aate, and there's that one-on-one connection between the audience like we are today. When you can hear the tone of the voice, when you can hear the inflections, you can hear the gravel, I think that is also going to be a part of what is going to be an offshoot of people who eventually will enjoy sci-fi films. I also enjoy, but you also need this. So I think it will coexist. And I don't think as an actor you need to bother about it because you can't do anything about it. I mean, tomorrow if someone comes and says, listen, as they have come to me and said, we want to duplicate your voice because you have to answer 20 fan mail or whatever to ek tone rating. I said, no, I don't want to do it. I have time, I will do it. So, I mean, artificial intelligence, whether it's artificial or not, will be part of our presentation style and our way of telling stories. And that's part of it. Was happening, we call it now. But in Indian mythology, there has been that special effects forever. In the Ramayana, in the Mahabharata, it's full of special effects. Absolutely. So ये कोई नई बात नहीं है कि यार आप हमें only thing now is that we can tap it, we can control it, and it has come into our being today. So that aspect has always been there. But still the characters in Mahabharata are still there as well. I mean, you know. So moral of the story, Sabbi Archita, आप लोग artificial intelligence खुद भी कभी-कभी मैसेजेस का रिप्लाई दे दिया करो. सिर्फ फैंस नहीं मुझे कि हमारे शोज देखिए सर मुझे बार-बार बोलना पड़ता है. अभी आप ये लोग होते नहीं तो 10 बार बोलता काइंडली सी माय शो विद दालिप ताहिल साहब. लेकिन वो रंजन जी आप कुछ पूछ रहे हैं? अर्चिता जी आप तो खुद ओह शीतल सर शी इज आल्सो वन ऑफ द front runners, heroines of our time. She's one of the top heroines. Sheetal Patra, and besides her is Elena. They are. Elena is a discovery of OTV. All these lovely ladies. There's no chance of artificial intelligence. No, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल. सर जब मेरे साथ आते हैं. Can't happen. सर मेरे साथ आते हैं. और हमें तो 2 मिनट में रिप्लेस कर देंगे. आप निश्चिंत रहिए. सर मेरे लिए बड़े आर्टिफिशियल ट्रीट करते हैं मुझे. हमारे लिए तो इंटेलिजेंस भी नहीं चाहिए रिप्लेस करने. आर्टिफिशियल हो या जो भी हो. तो सर Elena is a discovery of Jaggi ma'am, and Sheetal is a favorite. हम दोनों इनके हस्बैंड द ग्रेट MP बैजंत पंडा जी के साथ कैंपेनिंग करने गए थे. तो सर वहाँ बोल दी बैजंत मैंने आपसे बचपन से देख रही हूँ, मुझे फिल्मों में ले लो. मैंने कहा यार अगर बीवी मिल रही है तो मेरे को भी ले लो. सर मुझे हटा लिया, 10 फिल्मों में उसको साइन कर लिया. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे जरूरत है सबसे. या शीतल प्लीज. Good afternoon sir and welcome to Odisha. My question to you would be,
could AI be used to replace the legendary actors like you? I am a big fan of yours, especially your peculiar laugh. वो सर मीम है वो अजनबी में everybody says we want to laugh like दालिब ताहल से वो जो रम we happy सर वो हंसी So Madhubala ji's adaएं, Sridevi ji's, the way she portrays herself on screen, can it be recreated through the artificial intelligence for the new movies? क्योंकि इंस्टाग्राम में देखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत वो No, पुराने गाने exactly what we were discussing. Look, you can do it. I mean, technically, you can replace anybody with artificial intelligence, but will it have the resonance of a Madhubala? Never. You can have, you can use the technology. I mean, that's what the technology is there for. But if you're talking about replacing, there will come a time when it'll be charming to see replicas of Madhubala and everybody who were great artists and all. But I don't think it'll sustain, it'll coexist. वो भी है और ये भी है, but the core of the performing arts Do you think it will be ethical? Sorry? And do you think will it be ethical? Will it be ethical to replicate such That's icons? that's another conversation altogether about the ethics of it. And that's why I talked about artificial intelligence in terms of a society to create an imbalance in the way we know society. So there are a lot of, it's a very good question. There are a lot of ethical issues with replacement of human beings intellectually, emotionally, and in any way. But that is in my mind, one of the crucial debates of artificial intelligence, because ethically, it is in the hands, it is self-regulated. And so far, as I said earlier, the track record of the people who will be really using artificial intelligence in companies and like Big Pharma and all I said, have proven over time that they are not ethical about it at all. Correct. They want profit. So there's a danger, yeah. 30 साल बाद शीतल मतलब सब पूछेंगे शीतल की रेप्लिकेट हो सकते हैं क्या? कभी नहीं होगी. जे जार कोच तारो डो तो उसके पिक्चर का नाम है उसके अजीब फिल्म They can try, but they're not going to get close to it. Don't worry. इनके फिल्मों के नाम भी बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो चुकी जो बोलना है बोलो छोटा बच्चा स्क्रू ढीला सर ऐसे ही ए रेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम है उनका बहरहाल वी कैन टेक वन मोर क्वेश्चन एलिना वुड यू लाइक टू आस्क सर उसकी रिसेंटली अभी भी शादी हुई है Congratulations. एलिना जस्ट मैरिड आफ्टर सम ह्यूज फिल्म्स नंबर ऑफ अवार्ड्स उसका हस्बैंड भी दिखता नहीं है सर वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हम लोग मैंने आज किसी ने नहीं देखा भाई को Sir, I'm just very happy listening to you. Welcome to Odisha, and we all want to hear something from you, like your famous dialogues, one of your famous dialogues, please. तो बनता है Oh, man. Well, there was one that I said in Kayamat Se Kayamat before you were born. And, but because of coming of television and technology, people have actually seen the movie because and this is the upside of technology. I was in the lift with a 14-year-old girl who was in a school uniform. Don't look at me like that. It was absolutely the thing. And she says, "Uncle, I really like your acting." So I said, "Excuse me, where have you seen me?" She said, "Uncle, I've seen you in Kayamat Se Kayamat on television." So I mean, it's given a lease of life. उसमें एक डायलॉग था जब मेरा बेटा आता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि अगर मेरे बेटे को कोई आंच आई उसको कुछ हुआ तो मैं वही धनराज हूँ जो 14 साल पहले हुआ करता था. She doesn't remember it. No, so honestly, I'm struggling to remember it myself. It's that old. सर मैं बताता हूँ कहीं ना कहीं जब कस्प ऑफ चेंज आया था यू वर द फेस ऑफ सिनेमा चाहे वो शान हो देन टीवी हो बुनियाद हो रोमांटिक फिल्म्स हो क्यूवर्स क्यूटी द खान्स हो इन 90s वेब सीरीज लाइक तुलसीदास जूनियर एंड सिया के राम में दशरथ यू वर ऑलवेज ऑन पार विद द चेंजिंग टाइम्स और मुझे वो डायलॉग याद है सर मेरा फेवरेट ये है मैं बोल देता हूँ सर आप थोड़ा उसके साथ रिपीट कीजिएगा मैं आर्टिफिशियली बोलूंगा आप इंटेलिजेंट के साथ बोलिएगा तुम्हारे वादे के मुताबिक सर बोलिए ना तुम्हारे वादे के मुताबिक आज मधुमती की आज मधुमती मेरी बहन की डोली उठने वाली थी हाँ मधुमती मेरी बहन करेक्ट डोली उठने वाली थी डोली उठने वाली थी लेकिन तुम्हारे वादे खिलाफ सर ये गड़बड़ टेक 2
सर लेकिन नहीं यू डूइंग फाइन। चलो वो ऐड कर दिया सर, वो इसलिए एडिट हो जाता है मेरा सब। लाइव में कोई एडिट नहीं होगा सर, इसलिए बोल ही जा रहा है। लेकिन आज तुम्हारे वादे के मुताबिक उसकी डोली उठनी चाहिए थी, लेकिन उसकी अर्थी निकल रही है सर, उसकी अर्थी निकल रही है। उसकी अर्थी निकल रही है। लेकिन आज यहाँ से एक नहीं दो अर्थियां निकलेंगी। आज नहीं एक नहीं दो अर्थियां निकलेंगी, तुम्हारी और इसकी। तुम्हारी। एंड देन द कास्टिंग बिगिंस। नासिर हुसैन प्रेजेंट्स कयामत से कयामत तक। एंड देन कम्स मदन चोपड़ा। And I'll tell you a very funny thing that when Nasir Saab was a great Nasir Hussain Saab who did fabulous movies, when he was, जब वो मुझे नरेशन दे रहे थे तो उन्होंने यहाँ तक ही मुझे जब नरेशन दिया यहाँ तक तो मैंने कहा मैं कर रहा हूँ ये फिल्म सर, इतना ड्रामेटिक स्टार्ट है मैं कर रहा हूँ, इतना ऐसा बेटा पूरी कहानी सुन लो बैठ जाओ सुनो। तो मैंने कहा सर कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक इतना ड्रामेटिक है मैं कर रहा हूँ। So I mean, yeah, that was a wonderful. Thank you for remembering it, and thank you for जैसे एलिना ने giving कहा me this शीतल honor. ने, how you're relevant. सर आजकल मीम भी हो रहे हैं इंस्टा में कि गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को बोले तुम लोग अपने दोस्तों से क्यों नहीं मिलाते, और फिर क्लोजअप आता है दालिब ताहिल साहब, अमरीश पुरी जी, डन धनोवा, सारे के सारे गजर ने किया इशारा फ्रॉम त्रिदेव, म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर ओए 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 ओए, yeah. एंड फाइनली आप ही का गाना सबके लिए आर्टिफिशियल हो या इंटेलिजेंस हो सबको बोलना चाहिए जिले ले आयो आयो जिले ले। सर वो किम्मी कटकर तो ओरिजिनल थी ना सर, बिना कपड़ों की किम्मी कटकर। Sorry? और किम्मी कटकर टू पीस ओरिजिनल था। हाँ, क्या किस्मत पाई थी सर आपने। अभी इतना टाइम हो गया, मैं सर भी वो सोच लाइव रहा हो हूँ इसलिए बहुत बक रहा हूँ, बाद में बहुत पढ़ने वाली है। ह्यूज राउंड्स पर सुलगना प्लीज। थैंक यू। द रियल इंटेलिजेंट गर्ल। सर वो जो है ना रंजन साहब, सर वो चलते फिरते आर्टिफिशियल थैंक यू इंटेलिजेंस। सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस एन एक्सटेंडेड टाइम। आपने नहीं मजा आ गया सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Dilip ji. Can we have a round of applause? From Madan Chopra to Dan Ferreira, I think he's fantastic in every character. And thank you so much, Buddha, for adding so much wit and humor to the show. Thank you. What an absolutely insightful session that was. सर हम दोनों की शादी नहीं हुई है, पता नहीं शादी के बारे में क्यों बात इसकी कर रहा हूँ hosting कभी खत्म नहीं होती, Buddha. Thank you so much. मैं। सर एक भी नहीं हुई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. And thank you, Dilip ji, for reminding us that AI will never supersede human emotions, but it can make human emotions look better on screen. Mu augute koratali chaimbi for a fantastic actor for जोरदार inspiring तालियां। us all. And thank you, Buddha, once again for being an absolutely amazing moderator as always.